Hi everyone, welcome to the channel. And so this particular video, this particular session on legs prep is all about 24 hours to CLAT paper and the do's and the don'ts during the paper, during the examination. What are the do's and what are the don'ts? So uh, there are two mistakes. There are two mistakes that you are likely going to make on your CLAT day. Most of the times it happens. Like you can't, I mean, I have tried my level best, but I was not able to stop anyone from doing this. The very first mistake that people will do is forget about time discipline. Like this is the first thing that is compromised the moment they enter into the examination hall. This is the very first thing that they compromise, the time discipline. They forget that there is a proper time allotment, right? Proper time allotment for each section that you should follow. And once your time discipline is compromised, the second mistake that you're going to make, the second mistake that you're going to make is overemphasizing on questions you do not know. So this happens during the examination that let's say seven questions we marked correctly, but two questions we were not able to get answers of. Now, overemphasizing on questions you do not know will again cause lack of time discipline, and these two will keep you in the trap where your attempt will be stuck between 80 to 90 questions. And the moment in 120 minutes you are stuck between 80 to 90 questions, this is the toughest road. You know why? Because most likely you're going to slip. Please remember this, that in mocks you had the chance of reattempting to analyze and assess. This is not a mock. There is no reattempt. There is no second chance. So please understand this, why people, those who are attempting this particular paper for the first time, drop year or not, 12th के साथ हो या नहीं हो, तुम्हारा ये जो पहला अटेम्प्ट होने वाला है, क्यों मैं हमेशा कहता हूँ that treat it like an experience. Your first attempt is going to be a good experience only. Because those students, those who have appeared in CLAT, know this particular thing. What is the importance of time discipline? And the second thing is the sequence, or rather, you can say this is the third aspect that people will compromise on, the sequence. So how to escape this particular thing, sir? कि हमारा सीक्वेंसिंग जो सेक्शन वाइज होता है, हमने जो सीक्वेंसिंग सेक्शन वाइज इतने मॉक आपने दिए हैं, आपने अपना एक फिक्स पैटर्न बनाया होगा सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने का। बट आप जब देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका ये जो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट का जो प्रोसेस है ना, ये क्या हो चुका होगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका होगा एग्ज़ाम में। तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एस्केप दिस, आफ्टर ऑल हाउ टू एस्केप दिस पर्टिकुलर थिंग, isn't it? So I'll tell you one simple thing. First of all, let me give you the time allotment section wise, which is obviously ideal, which is obviously ideal. It's not the thumb rule that यही करना है आपको, आपका अपना हो सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, मतलब इस ये एक लास्ट ट्रुथ है, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि whenever I'll get the paper, I'll ask my students to attempt legal aptitude first. Legal aptitude will have what, 30 questions, and maximum time that you can spend here is 35 to 40 minutes. And that is when your clock is at 0 to
p.m. and you got to wrap it by 0 to 40 p.m., right? And this will be your very first section. You have to attempt all the 30 questions in 40 minutes. So I would say, what is the lowest and the maximum time that you can afford to each passage? The bare minimum time is 5 minutes per passage, and the maximum time that you can spend is 8 minutes. So there would be like, out of 30 questions, let's say you can say six passages are there, right? Each question. So there would be like three passages, 3 to 4 passages, which will take 20 minutes of yours. And then again, there would be like three passages per se, which will take somewhere around, you can say, 20 to 25 minutes. So here you can see, I can say easily that four passages would be taking only 20 minutes. And then there would be like, you can say, remaining two passages, at times three passages, which are also going to take 20 minutes. Two passages. So you got to adjust with the flow, right? You have to mark all the 30 questions. No, the point is that read all 30, mark at least mark at least 25 of them. At least 25 questions have to be attempted, bare minimum. Read all 30, but you will be able to reach to all the 30 questions. In case कोई ऐसा सवाल है तो bare minimum 25 क्वेश्चन तो मार्क आपको करना है, यानी OMR में 25 बबल्स तो लीगल के भरने हैं, ठीक है? सेकेंड थिंग, second aspect. After this, what is the second aspect? So after this, I will directly take critical reasoning. You know why? Because critical reasoning is also very direct. Now, there are 25 questions that I'm supposed to do. Out of critical reasoning, there are 25 to 25 questions that I'm supposed to do, and I'm not going to invest more than 30 minutes. So it's like, if I'm ending the paper and I'm ending the legal section at 2:40 p.m., then by 3, you can say 10 or 20, sorry, 3:10 p.m., I will be done with critical reasoning. Now you will find in this particular segment that almost by putting 40 minutes in legal and 30 minutes in GK, CR, I have spent 1 hour 10 minutes of my examination, and I've solved two most scoring sections of you can say CLAT. Two most scoring sections. Most appropriate, most scoring, not so difficult, very direct, and pretty much easy all the time, right? 1 hour 30 minutes. So what is the time period that I will have in this? So you can say that there would be 5 passages and you will have 6 minutes per passage. And if you have not seen the videos, please go on to my playlist. There is a playlist CLAT 365. There is a playlist Class 365. Go in that playlist and see there are different videos: how to solve legal within 6 minutes, how to solve logical reasoning, how to solve inference based questions. There are set of exercises from previous year papers that will help you in assessing it. So in 6 minutes per passage, you know that what is the strength that we do? We give 3.5 minutes in passage reading, प्रॉपर टाइमर के साथ आराम से पैसेज रीडिंग, और उसके बाद लगभग लगभग हम लोग 1.5 से 2.5 मिनट लगाते हैं सॉल्विंग में. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इट्स लाइक वन क्वेश्चन विल हैव 1.5 मिनट्स. आराम से करेंगे लीगल क्रिटिकल रीजनिंग. ये लीगल के बाद सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट होता है, राइट? यहाँ पे याद रखिएगा, मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है आपकी. पैसेजेस छोटे होते हैं, questions lengthy होते हैं. Passages are small, questions are big, and that is why it will take 30 minutes. So this will be the second sequence. But in 1 hour 30 minutes, I have pretty much solved, you can say, 55 questions of CLAT. And these 55 questions of CLAT per se are most scoring. So these are in my bucket now. Now I am going to change the trajectory. Now what will happen? I'll come to the third segment, and this will be GK and current affairs. Before you think much about GK and current affairs, let me tell you this very fact, that it is going to be a shocker. Every year from CLAT 2020 till 2023, GK is like a सांप की चाल.
It has been changing its trajectory, its direction, its way of asking questions, its dimensions and dynamics. Every year they have changed, every year, almost every year. So earlier what was happening, the students were fearing, sir, statement based questions. In 2020 2021 there was a trend where statement based questions were very prominent, like 11 से 12 questions आ रहे थे statement based. But if you check 2023 का paper, no single statement based, no single statement. 2022 was the last paper where we had seen some statement based questions, but there is no statement based questions, no statement based questions. Direct questions were there. Now, again, the second aspect was that international relations were very much important when the paper had changed the syllabus in 2020. But ये भी थोड़ा सा डाउन स्लाइड पे जा रहा है. स्पोर्ट्स की न्यूज़, क्लैट में जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से 2020 से लेके 2022 तक 3 साल तक कोई भी पेपर नहीं आया. लेकिन वहीं आप 2023 में देखेंगे तो 2 ही क्वेश्चन थे. और बच्चों ने फिर 2024 में क्या कर दिया, स्पोर्ट्स पे पूरा एम्फेसिस दे दिया. ठीक है भाई, वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है भाई, कॉमनवेल्थ हुआ है, ठीक है भाई, एशियन गेम्स हुए हैं, तो यही 3 तो इंपॉर्टेंट हुए बस. फिर एक तरीके से पूरा स्पोर्ट्स में क्या लिए फोकस कर गए, विम्बल्डन और तमाम तरह की चीज़ें. तो अगेन आई वुड से, आई कैनॉट से कि स्पोर्ट्स आएगा कि नहीं आएगा. फिर साइंस एंड टेक, सबसे दुखती बड़ी नब्ज होती है साइंस एंड टेक. ये क्लैट ने कभी इस पे फोकस नहीं करता था साइंस एंड टेक पे, लाइक नेवर. बट 2021 एंड 2022 में क्या कर दिया, क्लैट ने साइंस एंड टेक से सवाल पूछ दिए. तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ, आप पहले से ही दिमाग में बना के जाइए कि वो शॉक देगा, इसीलिए उसको हमने किस पोजीशन पे रखा है, थर्ड पोजीशन पे हमने जीके एंड करंट अफेयर्स को रखा है. ठीक है, दैट इज वाई जीके एंड करंट अफेयर्स इज द थर्ड पोजीशन, बिकॉज इट यू डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर इन इट और नॉट. एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड दैट यू आर गोइंग टू अलॉट टू जीके, कितना समय दोगे, 10 मिनट, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स यू आर गोइंग टू गिव, ओनली 10 मिनट्स. आउट ऑफ दिस 10 मिनट्स, प्लीज़ रिमेंबर, आप जीके में प्लीज़ कोई फ्लूकबाजी मत करिएगा. भले ही आपके ऊपर के 2 सेक्शन बेकार गए हों, यू गॉट टू अट, कोई फ्लूक्स तुक्का नहीं मारना है ना. 10 मिनट में जीके के अराउंड यू कैन से 24 to 30 क्वेश्चन होंगे. तो हम फिर भी मान लें कि जितने लीगल के होंगे उतने ही जीके के होंगे, क्योंकि 25% पेपर जो होता है वो जीके होता है, और 25% पेपर जो होता है वो आपका जीके और लीगली होता है. तो हम मान लें कि इसमें भी कितने क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे. तो 30 क्वेश्चंस को आपको जीके के लिए ये स्ट्रैटेजी याद रखिएगा. स्टेप 1, फर्स्ट रीड ऑल क्वेश्चंस, राइट. फर्स्ट यू गॉट टू रीड ऑल क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द पैसेज. मार्क as much as you know, mark as much as you know. This you will be able to do in 5 to 7 minutes. This you will be able to do in, sorry, उल्टा बोल दिया मैंने, this you will be able to do in 2 to 3 minutes. क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है, मार्क किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है, मार्क किया. मैक्स टू मैक्स आई वुड से 5 minutes. And the second state would be, there would be certain questions which you do not know. For that, to solve remaining questions, ठीक है, glance and read fast the passages to solve the remaining questions. So you got to attempt GK in 2 sections, right. पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड करो जीके में, क्योंकि कुछ डायरेक्ट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे. उसके बाद कुछ बचेंगे, उसके लिए आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए एक बार पैसेज को फास्टली रीड करिए. एंड देयर वुड बी लाइक 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको पैसेज से मिल जाएंगे. आई कैन गारंटी दिस, हर साल ये ट्रेंड है, 2 से 3 सवाल आपको पैसेज से निकल के आ जाते हैं. कॉन्टेक्स्ट जो है कभी कभी पैसेज पढ़ के क्लिक कर जाता है. तो जीके में मैक्स टू मैक्स आप अपन, जीके में मैक्स टू मैक्स अपन 15 मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट्स. यानी जीके को हमने 3:10 पे अगर उठाया है तो किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे 3:25 पे स्विच करना है हमें. सेक्शन ख़त्म, टाइम उसका ख़त्म, 3:25. जीके को 15 मिनट में स्विच कर दिया. और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस
आप एटलीस्ट 20 तो मार्क करने की कोशिश करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है, बिना तुक्का मारे मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन आप तब भी कर पाएंगे, 10 to 12 क्वेश्चंस आप तब भी कर पाएंगे। हो सकता है कि बाद में जाके घर आके आपको ऐसा दिखाई दे कि दो तीन सवाल तो यार मेरे गलत हो गए, उसका कुछ आंसर कुछ और था, आपको कुछ और याद आ रहा था। 10 से 12 एवरेज है। कितना स्कोर करेंगे ये कोशिश कोशिश नहीं है हमारी। 30 के 30 मार्क करके नहीं आएंगे। 20 आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए, ये अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें हमारे करेक्ट कितने होते हैं, तो हमारे 15 करेक्ट होंगे, हमारे 5 इनकरेक्ट होंगे। तब भी आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे 15 करेक्ट होते हैं तो उसके बाद भी हम ऑलमोस्ट लाइक 13.75 मार्क्स निकाल के ले आएंगे, विच इज़ वेरी मच कंसिडर टू बी वेरी मच डिसेंट विद रिस्पेक्ट टू जीके, राइट। और ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, उम्दा स्कोर। तो जीके में जो मार्क्स सफल करता है वो 12 से लेके 17 मार्क्स के बीच में सफल करता है कैंडिडेट का। ये जो 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है यही एक तरीके से आपकी यू कैन से रैंक जो है ऊपर नीचे करता है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं करता, रैंक ऊपर नीचे करता है। तो अब 3:25 हो चुका है, जीके खत्म। अब जीके को तीसरे मिनट पे, जीके को पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस मेक और ब्रेक करता है जीके। तो बहुत सेफ चलने के लिए हम आपको ये हिदायत दे रहे हैं। फिर भी आपको चुल्ला काटे, आपको लगे कि आप थोड़े डिफरेंट हो, आप झेल सकते हो प्रेशर, तो आप जीके सबसे पहले करो, राइट। मेरे से कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी लाइक आई गो इन माई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई वुड चूज माई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस विच आर लाइक वाटर, लाइक आई विल बी एबल टू चेंज द स्ट्रैटेजी इन द लास्ट मिनट, बिकॉज आई एम दैट रिजिड माइंड। लाइक इतने कॉम्पिटिशन्स दे दिए, इतने MCQ सॉल्व कर लिए, हो गया है, तो अब आपके ऊपर वो चीज़ नहीं लागू होती है। इसीलिए आपको जितना बता रहा हूँ मैं, आप वैसे ही चलिएगा। आप अपनी खुड़पैच मत करिएगा, क्योंकि फिर 3 दिसंबर को पेपर देने के बाद सिर्फ रिग्रेट होगा। अरे सर, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आके कह रहे हैं इस टाइम पे, जून में मैं उनसे कह रहा था मॉक लगाना स्टार्ट करो, सीरियस हो जाओ, नहीं समझ में आई मेरी बात। अगस्त में नहीं समझ में आई। मैंने उनको बोला था कि बेटा हर्षवर्धन त्रिपाठी तुमको 3 तारीख को ही समझ में आएगा। मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि अखबार को डेली पढ़िए, करंट अफेयर्स को डेली पढ़ने की कोशिश करिए, नोट्स मत बनाइए, नोट्स टाइम टेकिंग है। आपको कॉम्प्लेसेंसी दे देता है नोट्स, एक फीलिंग दे देता है कि आपने नोट्स अगर बना लिए हैं तो आपको लगता है कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। नहीं, करंट अफेयर्स में रिसर्च ज़्यादा करिए, गूगल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे जंप मारिए, पैटर्न बनाइए, ज़्यादा पढ़िए, समझदार बनने की कोशिश करिए। अब अभी वही सारा डर रहा है, एक दिन पहले रिवाइज़ कितना करें, 5 कॉपियाँ हैं, किसके नोट्स पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, सर मॉक्स की गलतियों को देख लें, सर मॉक्स लगा लेना चाहिए था, सर अभी मैंने 10 ही मॉक लगाए हैं, नंबर 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, मेरा SC कोटा है, OBC कोटा है, कौन सा NLU मिलेगा, कट ऑफ क्या जाएगा, सर प्राइवेट कॉलेज कौन सा है। ऐसी बातें कर रहे हैं अभी आके बच्चे। तो ये तो पहले ही वो, ये पहले ही लिटमस टेस्ट है कि आप बाहर हो ऑलरेडी, आपका मन चित्त जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है कि बाहर हो। पर मैं ये बोलूँगा कि मानो मत उस हार को, स्वीकार मत करो। अभी भी आपके पास पेपर नहीं हुआ है। पेपर होने के बाद जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा मैं जनरली बता दूंगा, और मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ कि जीके आपको शॉक दे सकता है। जीके विल गिव यू अ शॉक। जीके इज़ लाइक आप कितना भी कर लो, जीके विल गिव यू अ शॉक, देता ही है। तभी मैं कभी भी 300 टॉपिक्स, 1500 टॉपिक्स ऐसे करके कोई लिस्ट नहीं निकाला, क्योंकि इतना लोड देने के बाद भी कुछ नहीं रिफ्लेक्ट होता है। यू डोंट नो, राइट। लेकिन 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है, ये है। और आराम से 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति 17 क्वेश्चन कर लेगा जिसने डेली बेसिस पे पेपर पढ़ा है। अगर आपने डेली बेसिस पे पेपर पढ़ा है और आप मेरी क्लासेस में रहे हो, अटेंटिव रहे हो, और आपका मेरा फ्लो समझ में आता है करंट अफेयर्स का आपको कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप कर लोगे। जीके में सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, इसीलिए उसको तीसरे नंबर पे करेंगे। याद रखिएगा, पहले 1 घंटे में जीके कोई नहीं खोलेगा। उसके बाद दोस्त, अब 3:25 से लेके 4 बजे तक का ये जो समय है, ये तुम्हारे हाथ में है ना। और ये जो 35 मिनट हैं, ये जो 35 मिनट हैं, अब ये तुम्हारे मेक और ब्रेक है। ये तुम्हारे मेक और ब्रेक है। तो इस 35 मिनट में तुम क्या करो, जैसे ही तुम्हारे पास 35 मिनट्स बने, टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ फर्स्ट सेलेक्ट 4 passages, select 4 passages in English based on length। कैसे? पेन उठाओ, पेपर में
पन्ने पलटो और 4 पैसेज पे ऐसे टिक मार दो कि आउट ऑफ 5 पैसेजेस व्हाट आर द 4 पैसेजेस दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। वो करने ही करने। नाउ उसके बाद सेकंड तुरंत क्यूटी सेक्शन पे आइए। कम टू क्यूटी। देयर वुड बी टू सिचुएशंस। देयर वुड बी टू सिचुएशंस, राइट। एक होगा पैसेज ए और दूसरा होगा पैसेज बी। आप दोनों के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को चूज करके कोई भी एक पकड़ लीजिए, पैसेज ए पैसेज बी। सॉल्व करने के लिए गिव इट लाइक 10 मिनट्स। गिव इट लाइक 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है और 5 क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। ये आप तभी करिएगा जब आपका क्यूटी का फंडामेंटल क्लियर है। आप अपने मॉक्स में ओनली अटेम्प्ट, कैवियट है यहाँ पे, ओनली अटेम्प्ट, ओनली अटेम्प्ट if you had been doing this, if you had been doing this in your mock, ठीक है, मॉक में अगर कर रहे थे, क्यूटी लगा रहे थे, 10 मिनट दे रहे थे क्यूटी को, भले आंसर आ रहा था नहीं आ रहा था, तभी करिएगा। अदरवाइज क्यूटी नहीं करेंगे। डो नॉट टच इट इवन। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस गिराएगा फिर से। लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करे जा सकते हैं। उसके बाद अब 3:25 से ये कहा 3:35 PM हो चुका है और आपने मार्क कर रखे हैं 4 पैसेज। अब 25 मिनट्स आपके पास बचा है और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपका बेयर मिनिमम टास्क है, बेयर मिनिमम टास्क है। अब इंग्लिश और आरसी में, सीआर में क्या डिफरेंस होता है? तो इंग्लिश का जो पैसेज होता है, ये याद रखिएगा, पैसेज जो होगा वो क्या होगा, वो लेंदी होगा। आप उसको बहुत क्लोजली आराम से नहीं पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के लिए आप यही रूल फॉलो करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के आपको वापस से पैसेज पे आना ही पड़ेगा। सीआर में ऐसा नहीं होता है। क्रिटिकल रीजनिंग में छोटा पैसेज है, 3.5 मिनट में आराम से ढंग से पढ़िए। आपको पैसेज को रीड नहीं करना पड़ता है। पैसेज में आते तो हैं लेकिन ढूंढना आसान होता है ना कि वो वर्ड कहाँ पे था, क्योंकि पैसेज छोटा है। इंग्लिश में 3 बड़े बड़े पैराज होंगे तो ढूंढने में समय जाएगा। तो आपको फर्स्ट जो रीडिंग है पैसेज की, फर्स्ट रीडिंग वेरी फास्ट, मतलब इट्स लाइक आपको 1.5 से 2 मिनट्स के अंदर अंदर में इंग्लिश का पूरा जो पैरा है वो एक सरसरी निगाह से रीड करना है। सेकेंड स्टेप में कम टू क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को रीड करिए। ऑप्शंस को रीड करने के बाद ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, ट्राई टू फाइंड द लाइन इन द पैसेज। ठीक है, ऑप्शंस को रीड करने के बाद वो लाइन ढूंढने की पैसेज में रीड करिए। उससे 2 लाइन पहले ऊपर और उसके 2 लाइन बाद वाली चीज़ों को रीड करिए। दिस विल टेक टाइम। ये आपको लगभग लगभग 1 मिनट पर क्वेश्चन पे लगा देगा। ज़्यादा भी लग सकता है, 1.5 मिनट भी लग सकता है। और ऐसे करके आपके इंग्लिश में अराउंड अराउंड 7 मिनट लग सकता है आपको एक पैसेज को सॉल्व करने में। अगर आपको 7 मिनट हर पैसेज पे लगा तो आप 20 क्वेश्चंस भी नहीं, आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे। ये डाइसी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन मार्क करके आए हैं और यहाँ पे 15 ही कर पाए तो वापस से आपने 20 क्वेश्चन का ही ब्रैकेट कवर किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चन मार्क किए थे और आप यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कर गए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक किसी पैसेज में 7 मिनट लग गया, पर दूसरे पैसेज को 5-5 मिनट में कवर करने का कोशिश करना ही है, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 5 से 6 मिनट ऐसा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 3:35 से 4 तक आपको क्या करना है, इंग्लिश कर लेना है। तो ये वाला जो टाइम डिवीज़न है, इसीलिए मैं बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आपको बता रहा था कि आप इसको समझ जाइए, अप्लाई करिए। कोई मॉक आज मत लगाइएगा, 5-5 मिनट का टाइमर लगा के पैसेज प्रैक्टिस करके आप चेक कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों का अभी भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले OMR में जो बबलिंग करनी है, जो बबल्स फिल करने हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ।
बबलिंग जो होती है ओएमआर में, वो हमेशा कंप्लीट सर्कल फिल होना चाहिए। दिस इज़ द राइट वे। अब ओएमआर में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो बबलिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसे बाहर निकाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये रिस्क लिया जा सकता है, ये रिस्क लिया जा सकता है, बट नॉट सो श्योर। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे, बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बाहर निकल गया अगर इंक तो कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें भी लिमिट है, ये दूसरा सर्कल टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सर्कल ऐसा है और तुमने ऐसा गोला भर रखा है, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लाइटली चलेगा, लेकिन आपको बबल में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द इनकरेक्ट वे, ये मशीन रीड नहीं करेगी। देयर इज़ नो सेकेंड ओ एम आर दैट यू विल गेट। तो अपने ओ एम आर में जब आप अपना रोल नंबर भर रहे हो, जब आप अपना आंसर की का बुकलेट नंबर भर रहे हो, तो आप याद रखिएगा आपको बहुत कॉन्शियसली ये काम करना है। 5 मिनट में आपको दूसरी ओ एम आर नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, आफ्टर एवरी पैसेज, आफ्टर एवरी पैसेज यू सॉल्व, फिल द ओ एम आर, फिल द ओ एम आर बबल्स। जैसे ही आपने कोई पैसेज सॉल्व किया, आप ओ एम आर बबल्स को भरिए तुरंत, साइमल्टेनियसली भरिए। क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मार्क किया, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मार्क किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप एक फ्लो में होते हो तो आप पांचों सवालों को कर लीजिए, उसके बाद बबल भरिए। जो बबल आप भरेंगे उसमें अराउंड आपको 20 सेकेंड्स लगेंगे, एंड दैट वुड बी द ब्रेक योर ब्रेन विल हैव in subsequent readings, right? So after every passage, fill the OMR bubbles, fill your roll number and answer की very precisely। आंसर की का इनिशियल्स उसमें बहुत ध्यान से लिखिएगा, कोई सेकंड OMR नहीं मिलता है, और बबल्स को प्लीज़ परफेक्ट करने की कोशिश करिएगा। दीज आर द लास्ट मिनट थिंग्स दैट आई विल टेल यू। एंड डियर, एंग्जाइटी हो रही है तो यू वुड से सर एंग्जाइटी, फियर, फोमो, व्हाट इफ्स, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एंड ऑल ऑफ दिस, इट्स प्रिटी मच नॉर्मल। इट्स प्रिटी मच नॉर्मल टू फेस एंड विटनेस ऑल ऑफ दिस। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसके के लिए आप शिद्दत से 6 महीने से, 8 महीने से, 1.5 साल से पिले पड़े थे, लगे हुए थे। फाइनली वो दिन आ गया जब आप एक्चुअली में क्लाट का पेपर फेस करने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, मिराकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन कोई नॉलेज का नहीं है। स्पॉट पे भी बच्चे परफॉर्म कर जाते हैं। 30-30 मार्क्स वाले मॉक में बच्चे भी, हाँ, क्लैट क्लियर कर लेते हैं। और 100 मार्क्स वाला भी उस दिन पैनिक अटैक हो जाता है और नहीं कर पाता है। इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि आप जब नंबर बहुत ज़्यादा ला रहे होते हो ना, 90, 95, 100, तो आपका दिमाग जो होता है वो थोड़ा ठस हो जाता है। ठस क्या है, उसको ग्रेटिफिकेशन और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे वो फॉल्टर करता है। पैसेज मेरे हिसाब का नहीं है, वो मुझको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये पैसेज नहीं आया, प्रेशर, पैनिक, ये सब। जिस बच्चे को ये पता रहता है कि उसके नंबर आ नहीं रहे हैं, कुछ है नहीं, वो बहुत चिल होके पेपर देता है, क्योंकि उसको पता है जो भी उसको करना है स्पॉट पे करना है। तो आप बहुत फ्लूइड माइंडसेट लेके जाइएगा। आप ये पहले से मान के जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान के जाइए कि आपने जितना भी पढ़ा है, आप जो कुछ भी जानते हैं, वो पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। ये मान के जाइएगा। ऐसा होगा नहीं कि कुछ आएगा नहीं। हम लोगों ने जब भी पढ़ाई की है, मतलब जहाँ मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ, मैं अपना पार्ट का गारंटी ले सकता हूँ, जहाँ मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, एप्लीकेशन पे फोकस किया है। हमने जो भी एक्सरसाइजेस क्लास में करी हैं, मैंने कभी ये नहीं पूछा आपसे कि क्या तुमको ये पता है, ये पता है। मैंने तुमको 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 में से हमेशा अपना कॉमन सेंस लगा के 2 को खाली किनारे करके 2 में से चूज़ करने को सिखाया है। एप्लीकेशन, लीगल भी बताया होगा तो कॉमन सेंस और एप्लीकेशन बताया होगा, क्रिटिकल रीजनिंग भी बताया है तो कॉमन सेंस और एप्लीकेशन बताया है, जीके भी बताया है तो कॉमन सेंस, एप्लीकेशन, एलिमिनेशन, यही मैंने बताया है।
एप्लीकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लीगल प्रोफेशन में। कानून पता सबको होता है, लेकिन उसको सही सिचुएशन में लगा कोई नहीं पाता है। तो पूरा एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड का है। जब पूरा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का है, तो किसी भी तरह का प्रीवियस प्रिपरेशन, प्रायर नॉलेज, प्रायर प्रैक्टिस will play a role but not a major role. So if the paper is of application of mind, then this might be tougher, then this might be easier. It should not matter, because if it is tough, it is tough for everyone. If it is easy, it is easy for everyone. All that you have to make sure, coming back to the same point, all that you have to make sure is that even in the worst case scenario, please remember that this is not a mock. There will be no second chance, and you don't have to leave on time discipline, and don't have to ever emphasize on questions that you do not know. Just let it pass, just let it go. And your attempts should not be 80, 90. It must touch 95 to 105 questions. It must. And I would still say there is no doubt 105 questions is the rule. 105 questions आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। इतना तो करके आना ही है सेफ साइड पे रहने के लिए। ठीक है। पेपर बहुत डिफिकल्ट आया तो 95, बहुत डिफिकल्ट आया तो 95, बहुत इजी आया तो 105 आसानी से टच हो जाएगा। लेकिन एक डिसेंट स्केल पे भी आप 95 से 105 के बीच में कुछ भी करके आओ। इतने के बीच में तो करके आओ, कुछ भी करके आओ, इतने के बीच में तो करके आओ। कट ऑफ के जो भी ट्रेंड्स और एनालिटिक्स हैं उसको अपने दिमाग में अभी सब निकाल दीजिए, सब टेंटेटिव है, पेपर पे डिपेंड करता है। जिस हिसाब का ट्रेंड है मैं आपको बता देता हूँ, 2020 जो था वो डिफ़िकल्ट था, 2021 इजी था, 2022 मॉडरेट था, 2023 इजी था बट बहुत लेंदी था, और अब 2024 का क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा कैच? मेरे हिसाब से 2024 इज़ गोइंग टू बी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट स्लाइटली ऑन एन ईजियर साइड। बट ये लोग अगेन आपसे लेंथ पे खेलेंगे, लेंथ ऑफ द पैसेज, लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस, दे आर अगेन गोइंग टू प्ले ओवर देयर। सो मैं आपको पहले से एक प्रिडिक्शन कर दे रहा हूँ दैट 2024 का पेपर जो भी होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी द लेंथीएस्ट सो फार। पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ, गैम्बल कर रहा हूँ, बट मुझे जो गट फीलिंग है दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द लेंथीएस्ट पेपर सो फार। बिकॉज क्लैट कंसोर्शियम जो है ना, क्लैट कंसोर्शियम को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, जब से मैंने क्लैट दिया है और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टोटल मिला के 10 साल हो गया है। क्लैट कंसोर्शियम मेच्योरिटी धीरे धीरे अपनी बढ़ा रहा है, और जैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ रही है तो उसके क्वेश्चंस का जो तरीका है वो भी मच्योर होता जा रहा है, गेम अप हो रहा है। और क्लैट पेपर पूरा लेंथ पे खेलता है, तो क्लैट 2024 is going to be the lengthiest paper. And again, I would come back to the same thing, that time discipline will play a major role. So, with this thought in mind, all the very best. Sit back, chill, relax. Nothing much can change now. It's all very much decided. And जो भी होगा अब 2 से 4 के बीच में स्पॉट पे होगा। ऑल द बेस्ट।